Question number 74. Any doubts? No doubt. चलो. How did you solve, Gautam? Sir, the question is consider the following statement and how many of the above statements are correct. Sir, the statement 2 I was aware by the knowledge. कैसे पता था तुम्हें? Statement 2, sir, कहाँ SAG पढ़ा we था? in coaching notes it's taught, sir. What is the information about it? SAGs, SAGs we in governance we study a lot full topic of SAG. Yes, we study. Yes, it's an important Yes, topic. तो इसका yes. क्या है आंसर? SBI नहीं है, क्या है? No, no, sir. Statement 2 I am talking about statement 2. नहीं, स्टेटमेंट टू ये नहीं पढ़ते हैं यार नोट्स में, ये कहाँ पढ़ते हैं Yeah, sir. There is कि a ऑल question. मेंबर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल? ये ओवरथिंक कराने वाला सेंटेंस है एक्चुअली. No, sir. I was very sure about this. ओके, फाइन फाइन. So ओके. statement 2, and then I went to statement third, ओके. and statement third I found it very soft, and the given was regional rural bank and scheduled commercial banks इट्स वेरी support डिजायरेबल सो शुड बी ट्रू. support SAG. Yes, sir. देन Then प्रॉब्लम विल बी then इन स्टेटमेंट वन. yes, sir. I was in statement 1, so I had a confusion between HTBC and SFUW, हाँ. but there was some not a guess that I thought the first bank was like Grameen Bank. Probably I have heard somewhere. So I went with SFUW. ओके. I got the answer correct. I got B. But ओके. sir, I again tried option analysis in this. But by that I got wrong answer. Actually, what I did was I could see hierarchy very visible because I knew statement 2. So I reached that there won't be answer iota or nota. But the question was from SAG, and I thought it is preferable. So ideally it should be at lower side. So I thought it should go A. But So what is your lesson? lesson that I think we should not apply like this. I'm confused, sir. I नहीं have doubt कुछ that. तो सीखा होगा ना फिर. क्या इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं. ऑप्शंस एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में क्या लेसन सीखा तुमने? Sir, I think when we know the information or so we should not apply ET in एग्जैक्टली. that. एग्जैक्टली. और यही हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि ऑप्शंस एनालिसिस का टिपिकल क्वेश्चन ये है ही नहीं. ऑप्शन एनालिसिस इज मेंट फॉर क्वेश्चंस लाइक नेटो, यूक्रेन, एंडीज, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. नो वन सेंटेंस और वेरी शॉर्ट सेंटेंस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. वो जो साइंस एंड टेक के आ जाएंगे, कौन सा यूज होता है नहीं होता है, उस टाइप के एक्सेलरोमीटर टाइप क्वेश्चन उसमें करो ऑप्शन एनालिसिस. जहां फुल सेंटेंस दे रखा है. इवन योर ये जो पिछला क्वेश्चन हमने किया वो बसाल्ट, फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक वाला, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जहां फुल सेंटेंसेस हैव देयर ओन मीनिंग एंड देयर ओन वेट, जहां ऐसा दिया हुआ है तो वहां ऑप्शन एनालिसिस का रोल कम होता है, नेग्लिजिबल इनफैक्ट नहीं भी होता बहुत केसेस में, है ना. Okay. और दूसरी बात है, अगर if it is a choice between options analysis versus your organic processing, I have always told you organic processing is always better. You should look at the question once again कि भाई conflict अगर हो रहा है तो you should look at it once again. But if you are damn sure कि यार सेकंड और थर्ड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मार्क करो ना. ठीक हो, फिर क्या दिक्कत? फिर ऑप्शन एनालिसिस जैसे मैकेनिकल थिंग, वो तो एक तरीके से सेफ्टी नेट Yes, है sir. ना, तो Also, उसमें जाने की जरूरत नहीं है. yes, sir. I was trying with safety net only because in statement 1 I was confused, sir. So I तुमने tried. टू थ्री तो डैम श्योर थे ना. Yes, sir. Yes, sir. 2, 3 I was तो very sure. आंसर तो ब्रावो होना ही था इसमें. चॉइस शुड ओनली बी बिटवीन. कंफ्यूजन कब हो? जब मैं ऑल मार्क करूं कि बी मार्क करूं ना. ऑल तो तुमने हटा ही दिया. No, sir. Yes, sir. All I ऑल नन तो हटा remove. ही दिया बिकॉज ऑफ हायरार्की. तो Yes, ऑप्शन sir. एनालिसिस इज काइंड ऑफ वर्किंग, बट यू आल्सो हैव टू गिव मार्क्स टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज देयर. Okay, दिस इज okay. नॉट अ Yes. टिपिकल ऑप्शन एनालिसिस क्वेश्चन, है ना. Okay, sir. Right, sir. तो यू विल गो फॉर ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग एज हैविंग मोर सिग्निफिकेंस इन सच क्वेश्चंस. इन पिछला क्वेश्चन जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जहां फुलर सेंटेंसेस होते हैं, वहां पे अपना मीनिंग पे, जैसे जननी सुरक्षा योजना क्वेश्चन है, स्कीम्स के ऊपर आते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चन है जिनमें अपने आप में मीनिंग होता है ना. उसमें ऑप्शन एनालिसिस में नहीं जाएंगे. वो सीडीएस का क्वेश्चन था, चीफ चीफ वाला, वो कौन सा, डिफेंस स्टाफ वाला, आउंध वो एक्सरसाइज वाला. इनमें अपने मीनिंग होते हैं, सेंटेंस अपना वेट होता है.
तो यहाँ ऑप्शन एनालिसिस में जाना ठीक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये देख सकते हो कि हायरार्की है तो एओटा नोटा, एओटा नोटा पे ठीक है, एओटा नोटा में इट्स ऑलमोस्ट लाइक 100% टाइम्स ऑप्शन एनालिसिस वर्क्स, बट Okay, फाइनल then आंसर तक आने में रिस्क है। it would be like converging two ET technique, option analysis and organic हाँ processing. हाँ हाँ हाँ, Okay, right. ऑप्शन एनालिसिस यू कैन ट्रस्ट फॉर रिमूविंग हायरार्की, मतलब एओटा नोटा, दैट्स Okay. ओके, but not for exact answer. Exact answer should come only for your organic processing. Yes, Vidhi. तो गलती से उठ गया। So how to solve first statement? किसने किया solve? Tareen? सर फर्स्ट स्टेटमेंट वुड हैव हर्ट से किया, क्योंकि अगर एसबीआई करता तो इकोनॉमी में पढ़ लेते, करंट अफेयर्स में पढ़ लेते, एसएजीज में पढ़ लेते, क्योंकि बेसिक्स तो मालूम होता है कि एसएजीज हम्म, क्यों है कैसे है, तो एक लाइन तो exactly. में दे ही देता कि एसबीआई। शाबाश, बहुत बढ़िया, यही है, सिंपल सा है। अच्छा, यहाँ ध्यान रहे, वर्ड ओरिजिनली दिया है, लेकिन फिर भी हमने एचटीबीसी क्यों नहीं बोला? दिस वर्ड ओरिजिनली इज लाइक द वर्ड एक्सटेंसिवली एंड द वर्ड डायरेक्टली इन द रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस, यस और नो? तो हमने ओरिजिनली पे वेट डाल के एचटीबीसी क्यों नहीं बोला? क्योंकि एसबीआई और एसएचजी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं, टॉपिक सिलेबस बोल लो। एसबीआई भी सुना होता है और ये भी सुना होता है, तो यहाँ पे एसएफयू का एलिमेंट बढ़ रहा है, इवन इफ ओरिजिनली दिया है। अगर ओरिजिनली के साथ यहाँ पे कोई टुच्चा सा बैंक दे देता, कोई अनहर्ड बैंक दे देता, कोई नाम ऐसा, कोई कोऑपरेटिव कुछ समथिंग, तो हम एचटीबीसी बोलते, बिकॉज देन स्ट्रेस आ जाता ओरिजिनली पे। अब इसने थोड़ा सा फ्रेमिंग किया, अगर ओरिजिनली नहीं होता तब तो बहुत क्लियरली एसएफयू हो जाता, राइट? अगर ओरिजिनली वर्ड हटा दो तब तो बहुत क्लियरली एसएफयू है, लेकिन ओरिजिनली देने के बाद भी तो ये देखो रेंज कैसी आ रही है। किसी क्वेश्चन में ओरिजिनली दिया है, इनिशियली दिया होगा ओरिजिनली, और डायरेक्टली कहीं में गलत हो रहा है, कहीं में सही भी हो रहा है, वो रेंज आ रही है, ठीक है? एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई सेड कि वो जो वर्ड एक्सटेंसिवली है उसको इग्नोर करना ठीक नहीं है। यहाँ पे ओरिजिनली वर्ड है, इसको इग्नोर करना ठीक नहीं है, बट कॉल लेना पड़ेगा कि कितना प्रिपेरेबल है। दोनों अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तब यहाँ पे वुड हैव हर्ड के एसएफयू का एलिमेंट बढ़ जाएगा। अगर यहीं पे कोई ऐसा अननोन नाम दिया होता, छोटा बैंक कुछ दिया होता, तो हम एचटीबीसी बोल देते, फिर वो लाइम वाली बात हो जाती, बाय एडिंग लाइम, फिर वैसी बात हो जाती अगर छोटा नाम होता तो हम ट्रू बोल देते, ठीक है? इतनी सी बात है बस।